Hello everyone, this is Vishuddhi Gohal. I am here with my subject Social Science for the Standard 9th. As we all know that due to coronavirus, our country totally in critical situation. So most of the students can't go to school and can't do study. So I am here for all that students who want to study from home. Today we start the sixth part, Chapter 8, Framing of Constitutions and its Features. That means कि हमारा कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको फ्रेम कैसे किया जाता है और उनके फीचर्स क्या क्या है. इन कॉमन पैरेलेंस कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एंड सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रूल डिजाइन टू गवर्न अ कंट्रीज रीजन इज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स पूरे कंट्री को गवर्न करने के लिए जो भी रूल्स जो भी रेगुलेशंस प्रोविजंस डिज़ाइन की जाती है और उनका सिस्टमेटिकली कलेक्शन दैट इज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशंस. Importance of Constitution. Constitution is the basic and most important document. Please mark this line. The law of the country are based on the constitutions. The country's constitution and constitutional law should be subject to relevant provisions. Constitutions के law और हमारा constitutions जो भी related provisions है वो जो भी relevant subject है उनके related है. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है. कॉन्स्टिट्यूशंस इन्वॉल्व पीरियडिकली चेंजेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल एक्सपीरेशंस एक्सपेक्टेशंस इंटरेस्ट एज वेल एज द इमोशंस विच आर हाई. दैट्स द रीजन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट्स. मीन्स क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम पीरियडिकली चेंजेस ला सकते, हम अमेंडमेंट्स ला सकते, जो भी हमें नीड लगे पीपल्स के एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कि हमें ये चेंज लाने की नीड है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हम टाइमली चेंज ला सकते. इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशंस को लाइव एंड बेसिक डॉक्यूमेंट्स बोल सकते. प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशंस को फ्रेम कैसे करते. बिफोर द इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 25 March 1946 handed the duty to the cabinet mission of the 3 members to find a solution to the question of India's independence. On the basis of recommendation of the cabinet mission, the Constituent Assembly was constituted and the structure of the constitution was decided. Constitution Assembly comprises 389 members in which various members from different religion, caste, gender, people from various geographical diversification, political representative and expert from various sectors were included. टोटल 389 मेंबर्स से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें अलग अलग रिलीजियन, कास्ट, जेंडर और अलग अलग जियोग्राफी डाइवर्सिफिकेशन के आए हुए लोग थे और डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट भी थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामनाथ, फ्रैंक एंथोनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बालदेव सिंह एंड women representative like Sarojini Naidu, Vijayalakshmi Pandit, etc. were the members of the Constituent Assembly. Dr. Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly. Please mark this line. A drafting committee was appointed to draft the constitutions under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar. ये भी underline कीजिए. This Constitutions Assembly started working from 9th November 1946. 9th November 1946 को हमने ये स्टार्ट किया था और टोटल 166 सेशन स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 11 months और 17 days. मीन्स टोटल कितने सेशन लिए थे 166 और कितना टाइम चला था 2 years 11 months और 17 days. प्लीज़ मैं जो भी लाइन 2 times रिपीट कर रही हूँ प्लीज़ आप वो ध्यान से याद रखना. Members of the assembly had discussed thereby each and every detail of its provision keeping in concern the matter of constitutions of the different countries. In these constitutions there are 295 articles and 8 appendices. After amendments with 395 articles and 9 appendices, the constitutions was framed. स्टार्टिंग में 295 आर्टिकल एंड 8 अपेंडाइज थे, फिर अमेंडमेंट्स करके 395 किए गए आर्टिकल्स और अपेंडाइज 9 किए गए. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम January 1950, Constitution of India came into existence and that's why we celebrate the Republic Day as on 26 January because it was a declare a republic nation. We celebrate Republic Day with national fervor. In the Indian constitutions, we have 4 lions
as a national emblem and national slogan, Satyamev Jayate, truth will always win. The constitutions provide for citizenship, rights and duties of the people. Directive principle of the state policy, union-state relations, election and emergency provisions. Thus, the Constitution of the India is the most detailed and elaborate nation document. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशंस हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है, हमें राइट्स भी प्रोवाइड करती है, हमें ये राइट है, हमें वो राइट है. तो हमने फंडामेंटल 6 राइट्स तो हम पढ़ चुके हैं इस स्टैंडर्ड में. तो हमारी कोई कोई ड्यूटीज़ भी है वो भी हमें पता है क्योंकि हम वो सब पढ़ चुके हैं पहले. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है. दैट्स वाई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट डिटेल एंड एलोबरेट नेशनल डॉक्यूमेंट्स है. व्हाट इज़ प्रीएम्बल, तो वो हम पढ़ेंगे बाद में. पहले हम देख ले थोड़े फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेसिक फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के. द कॉन्स्टिट्यूशंस विच कैम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एक्सटेंसिव एंड डिटेल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स. ये मीन्स हमारा इंडिया का लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट है एक तो. सेकेंड, एक्सटेंसिव एंड डिटेल रिटर्न डॉक्यूमेंट है. मीन्स क्या, हम जितना भी अमेंडमेंट्स चाहे वो उतना ला सकते हैं और जितना भी बढ़ाना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं, और वो भी रिटर्न में होना चाहिए. इट मस्ट बी इन रिटर्न. सो इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट. गिवन बिलो आर द बेसिक एंड सैलिएंट फीचर्स. व्हाट इज सैलिएंट फीचर्स? इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इट. बेसिक और साथ में important फीचर्स भी है. फर्स्ट है रिटर्न डॉक्यूमेंट. एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इजराइल, इंडिया along with other nation of the world have their constitutions in written form. ब्रिटेन और इजराइल ये दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है. उनके अलावा वर्ल्ड में सब कंट्री के रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. कंसिडरिंग द सोशल, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टेंस and prehistorical nation, the Constituent Assembly has kept the draft constitution in written form. Second, size of the constitutions. कितना है हमारा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन. तो कि एक तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 सेक्शन, comprises 395 आर्टिकल एंड 8 अपेंडाइट्स. अभी कितने हैं? 12 है, वो आफ्टर अमेंडमेंट्स. The constitutions comprises provisions for the state administration and state interrelation, fundamental rights, principle for political policies, judiciaries, election commission, government institutions, minorities, scheduled caste, deprived groups. Therefore, the constitutions of India is the largest, extensive and detailed written document compared to other constitutions. ये सब वर्डिंग्स हमारे लिए न्यू भी है और कोई कोई वर्ड्स है वो जो हमें पता है. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स वो हम आगे इजीली कर लेंगे कवर. थर्ड वन, सिंगल सिटीजनशिप. इन अमेरिका ड्यूअल सिटीजनशिप इज गिवन. मार्क प्लीज दिस सेंटेंस. 1 मार्क्स में ड्यूअल सिटीजन की डेफिनेशन आ सकती है. One for United States of America and another for state citizen. But in India there is only single citizen irrespective of any region और स्टेट ऑफ द कंट्री. हमारे यहाँ सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है और वो हमारे कंट्री की होती है. और अमेरिका में क्या है कि ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं. एक तो स्टेट की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड अनदर वन इज द स्टेट सिटीजनशिप, जो वहाँ के जो भी स्टेट के वो भी उनको प्रोवाइड होती है. तो दैट इज कॉल्ड ड्यूअल सिटीजनशिप. But in India, only single citizenship is available. Fourth one is the center with the strong federal structure. India is a union of state. There is nowhere any reference of the word federal in the constitutions. Union of state is the sentence used for India. मीन्स हमारे इंडिया के लिए ये वर्ड है, ये सेंटेंस से यूज़ किया जाता है कि यूनियन ऑफ स्टेट. बाय द यूज़ ऑफ वर्ड यूनियन, a permanent and irrevocable relationship between the union and its component states is indicated. India is a union of state and no state has right to secede it. Thus, India is a union of state, yet it has some elements of federal government. In India, federation, there are two sets of government, union and state government. Union government means जो पूरे कंट्री को गवर्न करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट वाइज होती है वो. हमारा इंडिया है वो अलग अलग स्टेट का यूनियन है. दैट्स वाई हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट.
Thus, Constitution has clearly marked areas of functioning for both the kind of government. The Constitutions demarcates the power of the central and state government into different list of the subject. Central government is a kind of a union government and state government is a for the particular state. First, union list, state list second, and third one is concurrent list. डिफरेंट लिस्ट है वो प्रोवाइड की है. यूनियन लिस्ट में क्या है? यूनियन लिस्ट कंप्राइजेस 97 सब्जेक्ट. टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 97. सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, foreign affairs, atomic energy, banking, railway, communications, post are included in the union list. ये सब टाइप की जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो हम यूनियन लिस्ट में इंक्लूड होते हैं. हम ये तीनों जो लिस्ट है उनको हम चार्ट वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं. मैं आपको वीडियो में चार्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती, पर मैं आपको बोल सकती हूँ आपको कैसे ड्रॉ करना है. कि पहले थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट का हेडिंग लगाइए, उसमें 3 पार्ट कीजिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट. यूनियन लिस्ट में आप लिख सकते हो 97 सब्जेक्ट्स, स्टेट में 66 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट में 47 सब्जेक्ट्स. और फिर तीनों में 2-3 एग्जाम्पल लिख लिए. यूनियन लिस्ट में है फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशंस. फिर स्टेट लिस्ट में आ जाइए तो उसमें द स्टेट लिस्ट कंप्राइज ऑफ दोज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट लेजिस्लेचर हाउस कैन पास लॉ. सब्जेक्ट लाइज लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये स्टेट वाइज डिफरेंट होता है तो ये हम स्टेट लिस्ट में इंक्लूड करेंगे. लैंड, इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. इफ देर इज अ फेलियर ऑफ द लॉ and order in state, the union government with consent or against the will of the state can send reserve police force. अगर कोई भी लॉ है, कोई भी ऑर्डर है, वो स्टेट फॉलो करने में फेल हुई तो यूनियन गवर्नमेंट है वो या तो कंसेंट लेके या तो उनकी अगेंस्ट में जाके वो सब रिजर्व पुलिस फोर्स वहाँ पे सेंड कर सकती है. फिर concurrent list. In addition to this, the constitutions provide for a third list that is called concurrent list. हम एक तरह से देखिए ना तो कंकरेंट लिस्ट में हम क्या बोलेंगे कि भी ये स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट का मिक्स है, बट नहीं, ऐसा नहीं, ये टोटली उनसे डिफरेंट है. बिकॉज अगर उनका मिक्स होता तो वो हम कैसे ऐसे अलग कर पाते कि भाई ये पर्टिकुलर है वो इसमें इंक्लूड है और ये इसमें इंक्लूड है, ये डिफरेंट है. पर हम फर्स्ट प्राइमा फेसिया देखें तो हमें कंकरेंट लिस्ट दोनों का मिक्स लगेगा, पर ये दोनों का मिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत है बट पर्टिकुलर नहीं. विच कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन कंसर्न, जिनके ऊपर हम कॉमनली कोई भी डिसीजन ही बोल सकते हैं, जैसे कि बोथ ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट. The concurrent list has 47 subjects. This list includes subjects like criminal and civil procedure, marriage and divorce, education and economical planning, and trade union, etc. जैसे कि हमने देखा कि इसमें टोटली डिफरेंट है. इसमें क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर्स है, मैरिज डिवोर्स के केसेस है, एजुकेशन रिलेटेड है, जो स्टेट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में अलग से कहीं पे कंसीडर नहीं हुई थी. तो ये फोर्थ वन था द सेंट्रल विद द स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमने पूरी अच्छी तरह से किया और उसमें 3 लिस्ट भी पढ़े, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. प्लीज़ अगर ये पूछा जाए टॉपिक तो ये 3 में सिर्फ आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स लिख लो तीनों के और तीनों के 2-3 एग्जाम्पल लिख लो. बिकॉज पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस तो आपको सारे नहीं लिखने, डिपेंड्स ऑन मार्क्स के कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है. अगर 3 मार्क्स में पूछे तो 6 पॉइंट लिखिए, 4 मार्क्स में पूछे तो 8 पॉइंट्स. कोई भी 8 और कोई भी 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं. बिकॉज टेक्स्ट बुक में तो टोटल 14 फीचर्स दिए पर हमें सारे नहीं लिखने हैं, तो हम कोई भी 6, 8 और 10 जैसे कि मार्क्स से उतना हम लिख सकते हैं. तो हमें ये देख के चलना है कि भी 1 मार्क्स हो तो 2 पॉइंट्स होने चाहिए. अब हम जा करते हैं रेसिड्यूरी पावर्स. द सब्जेक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू यूनियन और स्टेट आर इंक्लूडेड इन रेसिड्यूरी पावर. ये भी 4th पॉइंट का ही पार्ट है, अभी हम 4th फीचर ही कर रहे हैं. Matters that are not included in the division of powers are known as residual powers. The central government is given the power to legislate on these residuary subject. The financial distribution of resource is done between the union and state government. Excise, custom, export, import, income tax, all these major taxes are decided by central government, while sales tax, revenue,
entertainment tax, education tax, which are having major financial issues are decided by the state government. ये है टैक्स का ही पार्ट, सब टाइप के टैक्स ही है, बट दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों गवर्नमेंट में हुआ है, एक कोई यूनियन में और कोई स्टेट में, बट है तो पर्टिकुलर टैक्स के रिलेटेड। तो इसीलिए हमें इनको जो है वो थर्ड पॉइंट में कवर कर सकते हैं, क्योंकि कोई जो कस्टम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो भी टैक्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, और एंटरटेनमेंट टैक्स है, एजुकेशन टैक्स है वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है। फिर फिफ्थ है यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। देयर आर 3 प्रोविजन फॉर इमरजेंसीज इन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। कोई भी इमरजेंसी हो उसमें 3 प्रोविज़न हमें प्रोवाइड की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट वन है नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म रेबेलियन। कोई भी रेबेलियन हुआ हो, कोई भी एक्सटर्नल अटैक हुआ, वॉर हुआ, तो वो टाइम पे हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं कि कोई भी हो वो हम एट अ टाइम वहाँ पे पोज कर सकते हैं। ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी इज डिक्लेयर। और थर्ड वन है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस देयर इज मॉनेटरी वैल्यू इरोजन एट दैट फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में और या तो मार्केट में चेंज होने की वजह से कोई भी प्राइस अचानक से इंक्रीज हो जाए इन मॉनेटरी टर्म्स वैल्यू इरोजन, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते। ये 3 टाइप की इमरजेंसी हमें प्रोवाइड की गई है, उनके लिए प्रोविजंस। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन more powers to deal with this emergency. At the time of emergency, India is almost turned into the unitary system. Then 6th one है bicameral practice. What is bicameral practice? तो देखें, India has a parliamentary system of governance. In a parliamentary system, the parliament is a supreme authority representing the people. पार्लियामेंट के पास सुपीरियर अथॉरिटी है पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लेजिस्लेचर एट द यूनियन इज द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इज द बाइकैमरल, मीन्स इट हैज 2 हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। दैट्स वाई वी कॉल अ बाइकैमरल प्रैक्टिसिंग। अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज नॉन एज लोकसभा, वो हमें पता है। तो द गवर्नमेंट इज carried on in the name of president at the union and the governing state. जो कंट्री में मेन है हम उनको प्रेसिडेंट के नाम से बोले जाते हैं और स्टेट में उनको गवर्नर बोलते हैं। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द यूनियन एंड द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। यूनियन में प्राइम मिनिस्टर होता है और स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो कैरी ऑन करते हैं। The Council of Ministers is responsible to the legislature that they comprise representative of the people. The President select 12 people who are expert and experienced from various field for राज्यसभा। राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट है वो 12 पीपल को सिलेक्ट करते हैं जो अलग अलग तरह का एक्सपर्ट हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो, और वो 12 पीपल की एक कमेटी बनाते हैं जो राज्यसभा को गवर्न करते हैं। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस इन विच 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 years, द सेम नंबर ऑफ मेंबर फॉर द इलेक्शन। राज्यसभा ये वो परमानेंट हाउस है, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, उसमें 1/3 मेंबर्स है वो एवरी 2 years रिटायर होते हैं। दैट मीन्स भी टोटल 12 मेंबर्स है तो उनके 1/3 मीन्स 4, तो एवरी 2 years 4 मेंबर है वो रिटायर होते हैं और न्यू 4 ऐड होते हैं। थस ईच मेंबर हैज़ अ 6 year ऑफ टेन्योर इन राज्यसभा। राज्यसभा में टाइम क्या है, टेन्योर लिमिट्स क्या है, 6 year की है ईच मेंबर के लिए। और हमने गवर्नमेंट में जो पढ़ा था तो उनके गवर्नमेंट के लिए क्या है, तो फिर गवर्नमेंट है वो एवरी 5 year चेंज होती है। सोशल में, सिविक्स में, हिस्ट्री में जाओ, दोनों में मोस्ट ऑफ द डेज ये नंबर्स, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशंस बहुत सी याद करने के लिए आती है। तो हम जो भी सब टॉपिक जब कर रहे हैं एट ए टाइम हम उनको याद कर लेते। तो ये चैप्टर में हमने यहाँ तक पढ़ाई, स्टार्टिंग में थे कितने आर्टिकल्स थे, कितने एम्पेटाइज थे, वो भी आपको याद रखने हैं। फिर राज्यसभा में 12 पीपल होते हैं, 1/3 एवरी 2 years चेंज होते हैं, उनका टेन्योर है वो 6 year होता है ईच मेंबर के लिए। वो सब हम अभी से याद कर लें। आप प्लीज़ अंडरलाइन कीजिए तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे डायरेक्टली वो आपको दिखेगा।
The powers of Rajya Sabha are less compared to the Lok Sabha, which is special, superior, and decisive. Rajya Sabha cannot be completely dissolved. Seventh, independent, impartial, integrated judiciary. The Constitution has provided for the establishment of an independent and impartial judiciary. There is Superior Court at the top. Then there are High Court at state, and under its jurisdictions are the District Court at district level, and at the Taluka level there are local and special court. प्लीज़ अंडरलाइन करिए, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, फिर हाई कोर्ट एट द स्टेट, अंडर इट्स jurisdictions are district court at district level, and taluka level there are local and special courts. The judgment of the Supreme Court are binding to all the subordinate court of the nation in case of conflict between the union and state matter related to the constitutions and interpretation of states. The final decision is vested with the Supreme Court. That means कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ हो कोई पर्टिकुलर मैटर पे, जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस के रिलेटिंग मैटर्स हो या तो जो स्टेच्यू है जो लॉ है उनको इंटरप्रेट करने में मीन्स मिस इंटरप्रेट हुआ है, क्योंकि हमारा जो लॉ है जो भी प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी है उनका इंटरप्रिटेशन ठीक तरह से होना बहुत इम्पोर्टेंट है. समझना और इंटरप्रेट करना दोनों बहुत डिफरेंट वर्ड है. अंडरस्टैंडिंग सभी पब्लिक लोग की अलग अलग होती है, बट इंटरप्रिटेशन एज पर लॉ एज पर स्टेट्यूट होना चाहिए. और उनके रिलेटेड कोई भी कन्फ्लिक्ट हो तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में उनका फाइनल डिसीजन आता है. सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्लीज़ मार्क दिस लाइन, ये भी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने में पूछ सकते हैं. और एक न्यू वर्ड हमने जो पढ़ा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यू मीन्स अगर कोई भी लॉ कि उसकी प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशंस में दी है उसमें जो बोलना चाह रहे हैं वो लोग वो ही हमें समझना है, ना कि हम जो समझे वो राइट है. जो राइट है वो हमें समझना है, उनको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं. हम ये बोलते हैं कि भाई नहीं ये तो मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, बट नहीं वो नहीं चलेगा. लॉ एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है वो इंटरप्रिटेशन है, तो मिस इंटरप्रेट नहीं होना चाहिए. तो ये वर्ड था इंटरप्रिटेशन जो हमारे लिए न्यू था. कोई भी प्रोविजंस में कोई भी मिस इंटरप्रेट हुआ हो किसी से भी तो वो मैटर से वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है. फाइनल डिसीजन जो भी होता है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में वो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में आता है. दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 8, अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस. फिर कॉन्स्टिट्यूशंस में भी चेंजेस तो लाना पड़ता है, टाइमली जनरेशन चेंज होती है और वो तो अलग बात है, पर पीपल की डिमांड से उनकी एक्सपेक्टेशन से न्यू रूल से वो लाने पड़ते हैं, या तो कोई एग्जिस्टिंग रूल है उसमें भी हमें चेंजेस लाना पड़ता है. तो 8 पॉइंट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इजी भी है. अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, constitutions of India is dynamic. Constitutions can be amended as and when required. Constitutional provision can be amendment in 3 ways. हम constitutional provision है उनको 3 अलग अलग तरह से चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज amendments can be made by the simple majority of the members present and voting in the पार्लियामेंट. ये अमेंडमेंट्स किसके थ्रू होता है? एक तो जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है उसमें से सिंपली कितने मेजोरिटी है जो भी साइड ज़्यादा हो जो भी मेजोरिटी हो वो हम ला सकते हैं और वोटिंग भी कर सकते हैं पार्लियामेंट में. सेकेंड वन, सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी. दैट मीन्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उसमें से 2/3 मेजोरिटी और उसकी वोटिंग होनी चाहिए. वैसे भी हम अमेंडमेंट्स ला सकते हैं. और थर्ड वन है कि कंसर्निंग द यूनियन स्टेट रिलेशंस द स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 एंड concurrence not less than 50% of the state legislature is required. Means 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, बट 50% से लेस भी नहीं होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर.
स्टेट लेजिस्लेचर है 50% रिक्वायर भी है। तो फर्स्ट में क्या था कि सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग करके अमेंडमेंट्स ला सकते। सेकंड में क्या था, स्पेशल मेजोरिटी थी, मीन्स 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए आउट ऑफ द टोटल प्रेजेंट मेंबर्स। और थर्ड वन क्या है, उसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट वन इज द स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 एंड द सेकंड वन इज द concurrence not less than 50% of the state legislature is required. Is any amendments to be made in interrelation between the union state structure of or in supreme judiciary, then half of the state from the total state have to give consent. Judgment of the court can also bring amendments by the parliament. There will be no change in basic structure of कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स हम कोई बेसिक चेंज नहीं ला सकते, कोई पर्टिकुलर रूल जो प्रोविजन है उसमें चेंजेस ला सकते। सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट कैन ब्रिंग change in the amendments of the constitution. That's why the constitution is known as the most inconstant and flexible documents, क्योंकि हमारा constitution है वो constant सेम नहीं रहता है, हम टाइमली उसमें periodically changes लाते हैं। बट एट द सर्टेन केसेस इट इज़ नॉट अमेंडेबल बाय सिंपल मेजोरिटी। कोई पर्टिकुलर केसेस है जिसमें हम सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट्स नहीं ला सकते। विदाउट द मेजोरिटी कंसेंट ऑफ द स्टेट इट इज़ नॉट अमेंडेबल। पर्टिकुलर केसेस में हमें स्टेट की कंसेंट है, उनकी मेजोरिटी कंपलसरी है, उनके बिना हम कोई भी अमेंडमेंट्स ला नहीं सकते। बट वो पर्टिकुलर केस के लिए है, नॉट फॉर दी ऑल केसेस। देन 2 द मिक्सचर ऑफ बोथ मेक द कॉन्स्टिट्यूशंस। 8th फीचर्स हमने 8 तक हमने किया, 9th फीचर्स से 14 तक हम नेक्स्ट मेरे लेक्चर में आ जाएगा। सो प्लीज़ इतना जो मैंने करवाया है वो एक बार अच्छे से रीड करो। अगर ना आपको समझ आए, कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दे और उसमें जो भी सजेशंस वो आप मुझे बोल दे, तो मैं उनका आपका जो डाउट्स है वो मेरे नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें क्लियर कर दूँगी। सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड अच्छी तरह से घर पे रह के पढ़ाई करो। गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड